Thank you, Girish. I am so glad you chose. I'm so glad. I personally believe that there's a reason to everything, and whatever happens, happens for a reason. I'm Shilpi, a trustee of Karista Foundation. Before we wind up the show for today and Girish goes on to the grand finale, I think I will first at least express my vote of thanks. Um, I would first, I'm overwhelmed. I would like to thank the audience that despite all the challenges, you're here. You have been a great audience and you are true lover of arts, because nobody will take the pain and come just like that if they don't truly appreciate art. And from Karista, we are trying to bridge the gap between art and philanthropy. And we're trying to raise funds for the underprivileged artists and all the performing artists who have been greatly impacted because of the pandemic. Financially, spiritually, emotionally, psychologically, they're affected. गिरीश जी मुंबई से आए हैं, खनक हमारे बैंगलोर से हैं, बाकी म्यूजिशियंस भी बैंगलोर से हैं, but it's been really brave of all of you to be here today for the live concert. And like Dr. Prakash said, ये माहौल वर्चुअली नहीं बन सकती है, राइट डॉक्टर प्रकाश? वर्चुअली नहीं बन सकती, हमने एक साल से वो देख लिया है. और गिरीश, थैंक यू फॉर स्टिकिंग टू द डिसीजन एंड कमिंग ऑल द वे फ्रॉम मुंबई. थोड़ी देर पहले दत्ता ने फ्लूट बजाया था, मैं खो गई थी एकदम. दत्ता, इसके बाद आई रियली कैन नॉट forget thanking Zafar Mohyuddin and Allianz Crossing for the wholehearted support. It's been a great association with them, and I think मुझे लगा ही नहीं कि ये सिर्फ Karista का प्रोग्राम है. The way Allianz team has supported us, the way Zafar ji has been involved has been tremendous, and we hope that we receive this support for the many coming days and months. And of course, thanks to our co-sponsors, Manipal Hospitals and Iris Home Fragrances, our partners, Afka Naturals, One Page Spotlight, and also Radio Fever FM for handling the campaigns and contributing in their own ways. Now, any guesses for the grand finale? I heard Girish with this same grand finale song 2 years back in Pushkar. He had sung in front of Gansingh Ji Maharaj, His Highness Jodhpur, and I was really speechless. So the grand finale of today's Sufi Bhakti compositions would be incomplete without that timeless Sufi classic, the Madam Mast Kalandar. This was originally penned by Amir Khusro in the 13th century and further modified by Bulle Shah in the 18th century. Probably one of the oldest Sufi songs with origins dating back to 600 years. This song honors Sufi saints Lal Shahbaz Qalandar of Shahbaz Sharif and Jhulelal of Sindh. This folk song has been the favorite of millions over the centuries and still a crowd puller. A world-famous dhamal, literally a song of merriment that is not just heard, but felt under the feet. So let's get ready to listen to the most celebrated and powerful Damada Mast Kalandar in Girish Dhamal voice. सुनने वाला अपने आप को रोक नहीं पाता. So Sufism is all about actually going against the trends and against the so-called society norms, of course in a positive manner, not in a negative manner. So अगर आप में से किसी का भी मन करे
ताली बजाने का, साथ में गाने का, नाचने का। जहाँ खड़े हैं वहीं नाच लीजिए, आगे आगे नाचना हो तो नाच लीजिए, ऊपर आके नाचना हो तो नाच लीजिए, बस इस जगह को छोड़ दीजिए। नाल बजे
अब क्या कहेंगे? 1 2 3 दमादम दमादम दमादम, दोनों हाथ के साथ 3 4 मस्त कलंदर दमादम हप दमादम हप दमादम हप दमादम हप दमादम दमादम हप दमादम यही बात जो मैंने पहले कही एंड यू नो 2020 अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए, कोरोना और पैंडमिक और लॉकडाउन स्पेशली। वो किसी तरह लोगों ने एक बार के लिए झेल लिया, किसी तरह जिसको कहते हैं ना कट गई, रात गई बात गई। अब जब थोड़ी की उम्मीद जागी थी लोगों के अंदर, स्पेशली म्यूजिशियंस के अंदर, एंड सडनली वो जो है ये दूसरा दौर आ गया, सेकेंड वेव आ गई और फिर से लॉकडाउन टाइप्स एक सिचुएशन बन गया। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल द मोर चैलेंजिंग फॉर आर्टिस्ट कटिंग अक्रॉस ऑल जॉनरास एंड ऑल स्ट्रीम्स इफ आई मे से। इसीलिए मैं ये मानता हूँ ये जो आज का एक शो हुआ है, ये उन आर्टिस्ट को मदद करने का जो एक थॉट अब आया है ऑर्गेनाइजर्स के मन में, करिश्ता के मन में, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये हमारे डॉक्टर प्रकाश सोनटके, इंडियन ग्रामी, इंडिया की तरफ से ग्रामी अवार्ड जीतने वाले, एंड आज ये जो मैंने आखिरी कलाम गाया था, ये ख़ास इनकी फरमाइश थी। तो दिस इज़ अ डेडिकेशन टू ऑफ कोर्स शहबाज कलंदर, झूलेलाल एंड आवर डियरेस्ट डॉक्टर साहब। मैंने गिरीश जी के बारे में सुना है और उनके यूट्यूब में वीडियोस भी देखा है, और हम लोग एक कॉमन ग्रुप में भी हैं, बट आज मैंने सामने बैठ के आनंद लिया, मेरे सच में रोंगटे खड़े हो। थैंक यू सर, थैंक यू। योर वॉइस इज इनक्रेडिबल। थैंक यू डॉक्टर साहब, दैट कमिंग फ्रॉम यू दैट मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। मेरी पत रखिए भला झूले लालन सिंधड़ी दा से बड़दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर, लाल मेरी हो लाल मेरी। थैंक यू। आई थिंक बहुत अच्छा प्रोग्राम था एंड इतने सारे मतलब लोग आए, कम थे बट डेफिनेटली इतने सारे भी आए, स्पेशली कोविड के गाइडलाइंस के बाद भी इतने सारे लोग आए। तो आई थिंक बहुत हिम्मत वाले हैं सारे लोग, और सारे म्यूजिशियंस भी। लॉकडाउन में हम म्यूजिशियंस को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है आई थिंक कोरोना का लॉकडाउन में। सो आई थिंक वेरी हैप्पी कि आज इतने सारे लोग आए एंड वी हैड अ लाइव शो, और मेरे को बहुत मज़ा आया। और गिरीश
जी के साथ मेरे को गाने का मौका मिला, तो बहुत खुशकिस्मती की बात है मेरी। मैंने तो यहाँ पे आज पेश किया था शिकवा जवाब शिकवा, तो उसमें मैंने शिकवा पेश किया था और ज़फ़र जी ने उसका जवाब पेश किया था। छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के, प्रेम वटिका मदवा पिलई के, प्रेम वटिका मदवा पिलई के, मतवारी कर दी नीर मोह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलई के। देखिए, जब से ये 2020 जो है, हम पूरे आर्टिस्टों को जो है नहीं एकदम काहिल करके रख दिया था, घरों में बैठे थे। जैसे ही हम सोचे कि भाई लॉकडाउन खुला तो कुछ करेंगे, और मौका मिलते ही मैंने अपने ड्रामे के 10 शोज़ कर लिए। अब जब शिल्पी से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ सूफियाना शाम करेंगे, कोई जलसा करेंगे, तो ये ख्याल उभरा। तो फिर मैं बोला कि हम अलियांस की तरफ से आपको सपोर्ट करेंगे, और हमने अलियांस की तरफ से जगह भी दी उनको, और उन्होंने एक अच्छा कॉन्सेप्ट लेके आया। तो फिर हमने इसको जलसा सूफियाना के नाम से हमने शाम रखी, और 2 शोज़ हम करना चाह रहे थे। ये लॉकडाउन नाइट कर्फ्यू की वजह से हमें सेकंड शो कैंसिल करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ऑडियंस अच्छी आई, शो अच्छा रहा। और मुंबई से हम गिरीश साधवानी साहब को बुलाए थे, और उनको भी पहली बार हमें सुनने का मौका मिला। क्या पैगाम आप क्या दे रहे हैं? हाँ, आज के हालात जिस तरह से जो फिरका परस्ती है और हिंदू मुसलमानों को दूर करने की कोशिश होती है, तो इन हालात में जो है सूफियाना कलाम क्या रोल अदा करता है? देखिए, सूफियाना कलाम सदियों से, जैसे आज ये दमादम सुना आपने, कितने सेंचुरीज पुराना है। सदियों से सूफियाना लोग, फ़कीर, संत वग़ैरह यही पैगाम देते आए हैं, और हम खुशकिस्मत हैं हिंदुस्तान में ऐसे संत गुज़रे, ऐसे फ़कीर गुज़रे, ऐसे औलिया गुज़रे, जो हमेशा लोगों को जोड़ने की बातें की हैं, मोहब्बत की बातें की है, और उसी की वजह से मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में आज भी मोहब्बत बाकी है। चंद अनासिर अगर आपको अलग करना चाहते हैं तो वो कामयाब नहीं होंगे अपने गलत मकासद में। ये सूफियाना कलाम हमेशा लोगों को जोड़ता है, और हम करते भी इसलिए कि ताकि लोग जुड़ें इससे, सभी मज़हब व मिल्लत के लोग एक साथ आएँ और मिलजुल कर रहें। यही हिंदुस्तान की तहज़ीब रही है, यही हमारी गंगा जमनी तहज़ीब है। हम चाहते हैं कि लोग इसी तरह मिलजुल कर रहें। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सभी मज़ाहिब के लोग जी, सभी ज़बानों के लोग भी यहाँ पर आए, हाँ, और उन्होंने इससे लुत्फ़अंदोज़ हुए, इस प्रोग्राम का मज़ा बताइए। जी। तो देखिए, मैं अपने पहले दीवानगी जो महफ़िलें की हैं, अब जो ये करता हूँ, हमारे इसमें आपको ज़्यादातर लोग सभी मज़हब व मिल्लत के दिखाई देते हैं, और ऐसे लोग आपको ज़्यादा यहाँ मिलेंगे जो उर्दू जानते हैं, जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है, वो लोग यहाँ आते हैं। ऐसे लोग भी आपको यहाँ महफ़िल में थे जो फ़ारसी सीख रहे हैं, जिनकी मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं है। तो ये हिंदुस्तान की चाशनी है, उर्दू हिंदुस्तान की चाशनी है, और फ़ारसी भी यहाँ काफ़ी सदियों तक रही है। तो ये तमाम चीज़ें अब आपको ऐसे सूफियाना कलाम में ही सुनने को मिलती हैं। जैसे आपने खनक को सुना, कितनी अच्छी तलफ़्फ़ुज़ में वो अपनी फ़ारसी बयान करती है और उर्दू भी बयान करती है। थैंक यू। महफ़िल के ज़रिए जो हमें संदेश देना है वो तो इंसानियत का ही संदेश देना है, क्योंकि आज जो दौर से हम सब गुज़र रहे हैं, जो मुश्किलें हमारे सामने आ रही हैं पिछले 1 साल से, और जो हमने वर्चुअल प्लेटफॉर्म में इतनी सारी हमने जो प्रोग्राम्स देखी करी, मज़ा नहीं आया। 1 साल में समझ आ गया कि महफ़िल तो लाइव जमनी चाहिए, और हमारे जो कलाकार हैं
वो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं इस पैंडमिक की वजह से। तो ये करिस्टा फाउंडेशन की तरफ से एक कोशिश है, एक शुरुआत है, जो हम कलाकारों को एक मौका दें वापस वही माहौल जमाने का। और इस माध्यम से हमने फ़ंड्स रेज़ करने की कोशिश की है उन कलाकारों के लिए जो बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुए हैं फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली। तो क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस के बगैर तो उनके जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। उनके जीवन का अर्थ ही है हम जैसे दर्शकों के लिए परफॉर्म करना। और सूफीज़म एक बहुत ही अच्छा माध्यम है संदेश देने का, क्योंकि ये बिल्कुल भी धर्म और भेदभाव से परे है। सूफीज़म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है। सूफीज़म का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, और वो है कि हम धर्म के नाम पर जो भेदभाव होते हैं, मतभेद होते हैं, उनसे ऊपर उठे। सिर्फ इंसानियत, इश्क, मोहब्बत, प्यार जो गुरु से हो, जो किसी साथी से हो, जो एक और इंसान से हो, उस प्यार पे हम, उस मोहब्बत पे हम ज़्यादा फोकस करें, ना कि भेदभाव पे। ख्याल है कि आपको एक ऐसा जलसा करे क्या सूफियाना? हम सॉरी, क्यों ऐसा एक ख्याल आ गया? ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैं जब गिरीश साहब से मिली थी 2 साल पहले, उनकी आवाज़ मैंने सुनी थी, तो उनकी आवाज़ की जो रूहानियत थी वो मेरे दिल को छू गई थी। फिर मैंने उनका एक प्रोग्राम पुष्कर में कराया था, हिज हाइनेस जोधपुर गज सिंह जी महाराज के सामने। वहाँ पूरा उनका प्रोग्राम सुना और सब लोग बहुत तारीफ़ किए वहाँ पर। तो तब से मेरे मन में था कि बेंगलोर में एक प्रोग्राम उनके माध्यम से करवाएंगे। और जब मैं ज़फ़र साहब से मिली अलियांस फ्रांसे में आकर, उनको कहा कि ऐसे सूफ़ी प्रोग्राम करवाना है, उन्होंने तब खनक का ज़िक्र किया। और खनक के बारे में मैंने बहुत पहले सुना हुआ था मेरे एक दोस्त के माध्यम से। तो मुझे लगा कि बहुत अच्छा होगा, एक फ़ीमेल सिंगर, एक मेल सिंगर, एक सूफियाना जलसा, एक माहौल बनेगा। और जलसा का मतलब तो होता है सेलिब्रेशन, गैदरिंग, खुशियाँ बांटना। तो मेरे ख्याल से ये सारा जो अर्थ एक साथ बैठ गया और बहुत अच्छा महफिल हम जमा पाए। और ज़फ़र मोहिउद्दीन प्रेसिडेंट जो हैं अलायंस के, और अलायंस का जो सपोर्ट रहा है टीम का, उसके बगैर तो ये हो नहीं सकता था। तो उनका बहुत सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बगैर नहीं हो पाता। मैं शिल्पी दास चौहान हूँ, करिस्टा फाउंडेशन की को-फाउंडर और ट्रस्टी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।